Hello children. Today we are going to read a lesson from class 5 English NCERT textbook. Name of the lesson is Robinson Crusoe discovers a footprint. So let's begin. Today we'll do the reading practice of this chapter. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो एक बार क्या हुआ कि रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो समुद्र से डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि ख़राब हो गया, जिस वजह से वो एक आइलैंड पर अकेला फंस गया और बहुत सालों तक वहाँ अकेला रहा। वह किसी कंपनी की तलाश में था कि उसे कोई साथी मिल जाता। और एक दिन अचानक उसने समुद्र किनारे रेत पर एक फुटप्रिंट देखा। अब देखते हैं आगे उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed for a long time thinking, but became more and more confused. तो एक बार क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूजो ने वहाँ पर समुद्र किनारे रेत पर एक फुटप्रिंट देखा और उसको देखकर वो बहुत सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो उसके अलावा कोई और रहता ही नहीं था। उसने आसपास देखा, ना उसे कुछ सुनाई दिया, ना उसे कोई दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ा ऊपर जाकर भी नीचे सब देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसे लगा कि क्या ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, हो सकता है वो सोच रहा हो, उसके दिमाग में कोई वहम हो। तो वो दोबारा उसी जगह पर गया, लेकिन वो उसका कोई वहम नहीं था। वहाँ सच में एक फुट का प्रिंट था। जैसे फुट के पार्ट्स होते हैं ना, आप अपने फुट में देखेंगे, हील होती है, टोज़ होते हैं, वो सारे पार्ट्स उस प्रिंट में थे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ आया कैसे। और वो सोचता रहा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and a tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब वो फुटप्रिंट देखकर रॉबिन्सन क्रूजो बहुत ज़्यादा डर गया। जब वो अपने घर गया तो रास्ते में भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हर एक ट्री या हर एक झाड़ी को देखकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई है तो नहीं। उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक से एक फुटप्रिंट को देखकर उसे वहम हुआ कि ये किसका हो सकता है, उसके अलावा और कौन है जो वहाँ रह रहा है। उसे डर लगा ये कोई सैवेज तो नहीं है। सैवेजेस मतलब ऐसे कुछ लोग जो बाकी जीव जंतुओं को खाते हैं।
तो वो बहुत डर गया, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो किसका फुटप्रिंट है। तो वो अपने कासल में चला गया। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब उसे डर लगने लगा कि वो कोई सैवेज हो सकता है जो बोट में इस आइलैंड पर आया हो, और अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो उस सैवेज को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब वो अपने बाकी साथियों को लाकर मुझे खा जाएगा मारकर। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो वो बहुत दिन तक डर में रह रहा था और वो प्रे कर रहा था कि वो सेफ रहे। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. और जैसे कुछ दिन बीते और वो प्रे करता रहा तो धीरे धीरे वो कंफर्टेबल फील करने लगा। फिर वो वापस बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने लगा कि वो फुटप्रिंट कहाँ से आया होगा। लेकिन अब भी जब वो बाहर जाता था उसको थोड़ा डर तो लगता ही था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो उससे क्या हुआ, 2-3 दिन तक वो बाहर गया और उसे जब कुछ नहीं दिखा तो वो थोड़ा बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया और उसने सोचा कि वो दोबारा वहाँ समुद्र किनारे जाएगा, शोर पर, जहाँ उसने वो फुटप्रिंट देखा था, और फिर से एक बार उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और अपने फुटप्रिंट से उसको मेजर करेगा। क्या पता ये उसी का फुटप्रिंट हो। लेकिन जब वो फुटप्रिंट के पास गया तो उसने रियलाइज़ किया कि शोर के उस पार्ट पर तो वो कभी आया ही नहीं है, तो वो फुटप्रिंट उसका हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जब उसने अपने फुट को साइड में रख कर देखा तो उसको पता चला वो जो फुटप्रिंट पहले से वहाँ था वो उसके फुटप्रिंट से बड़ा है, और वो फिर से डर गया। वो फिर से घर चला गया और उसे विश्वास था कि इस आइलैंड पर कोई और भी है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। इनहैबिटेड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं। तो रॉबिन्सन को पहले लगता था कि वो आइलैंड जो है अनइनहैबिटेड है, यानी कि वहाँ उसके अलावा कोई और लोग नहीं रहते। लेकिन अब उसे डर था क्योंकि उसने एक फुटप्रिंट देख लिया था। Now let's see some of the new words from this lesson. Amazed. Amazed means surprised. Next, frightened. Frightened means scared, मतलब डरा हुआ. Savages. Savages मतलब wild people in primitive state, मतलब आदिवासी लोग. Mainland. Mainland means large continuous extent of land. जैसे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम मेनलैंड कह सकते हैं, कि जो लैंड के लार्ज एक्सटेंट होते हैं, कंटिन्यूसली बड़े बड़े हिस्से जो होते हैं लैंड के. Wandered. Wandered means
To go from place to place without definite route or purpose. मतलब घूमना बिना किसी पर्पस या बिना किसी फिक्स रूट के, ऐसे ही इधर उधर घूमना. Boulder. Boulder means कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बोल्ड. हमने पहले भी 3 फॉर्म्स पढ़ी है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो यहाँ पॉजिटिव है बोल्ड, कंपैरेटिव है बोल्डर और सुपरलेटिव हो जाएगी बोल्डेस्ट. और इसका मीनिंग होता है मोर कॉन्फिडेंट. बोल्ड मतलब कॉन्फिडेंट. इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट मीन्स कैरी आउट सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू फाइंड ट्रुथ. मतलब सिस्टमैटिक वे में इंक्वायरी करना, स्टेप बाय स्टेप किसी सच का पता लगाने के लिए. इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मीन्स लिव इन और ऑक्यूपाई अ प्लेस. अब यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं. जो राइट हैंड साइड में है उसमें आपको कुछ कुछ घर दिखेंगे. तो ये वाला आइलैंड जो है राइट हैंड साइड में वो इनहैबिटेड है क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं. वहीं लेफ़्ट हैंड साइड में आपको जो आइलैंड दिख रहा है उसमें तो आपको घर दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कि वो अनइनहैबिटेड है, कि वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं. तो जहाँ लोग रहते हैं, जिस जगह को लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसे हम इनहैबिटेड कहते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.